Assalamu alaikum, dear students. Today we will study the experimental techniques in the pharmacology of the course 510. And for the experimental techniques, the main topic of today's lecture is the in vitro techniques. So first of all, we should learn what is in vitro techniques. In vitro word is derived from the Latin word which means within the glass, and it basically refers to those techniques which are performed or in a controlled condition, in a controlled environment outside a living organism. It means these are those experiments or those techniques in which several procedures are adopted in such a way that the cells or cultures can be grown, can be maintained as a culture फ्रॉम आउटसाइड आ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम उनके सेल्स को आइसोलेट करके और उन सेल्स को जो है वो लाइव रख के उन पे कुछ टेस्ट परफॉर्म करके उनसे कुछ रिजल्ट इंटरप्रिटेट करें फार्माकोलॉजी के अंदर. तो दीज आर called as in vitro techniques. Mainly these studies are performed either with the microorganisms or the cells or with the biological molecules that can be easily maintained by using simple petri dish or by using test tubes, and there is not so much sophisticated techniques is involved to maintain their viability. The opposite of this in vitro technique is the in vivo studies that are mainly conducted in living organisms like human beings, like in animals, etc., etc. So, for these type of studies, we need an living organism. However, the result can be obtained from in vivo experiment are not fully accurate as compared to those which are predicted in the in vivo experiments. So there are certain differences, उसमें बहुत सारे differences हैं in vivo और in vitro में. तो in vitro एक simple procedure है जिसमें हम सेल्स को बाहर जो है वो लेकर उनको मेंटेन करते हैं, और जब उनको मेंटेन करते हैं तो फिर उसके बाद उनके ऊपर इफेक्ट्स, डायरेक्ट इफेक्ट्स जो हैं वो चेक करते हैं. There are several advantages and disadvantages of this technique. The main advantage is that the technique is very simple. Basically, in vitro studies permits the specific species selection. We can select specific type of cell. We can take out anything जिसकी भी हमें detail analysis करनी है without the whole organism. हम किसी एक एनिमल को सेक्रीफाइस करके उसमें से जो है वो सेल्स आइसोलेट कर लें, एंड देन उसको फिर मल्टीपल टाइम्स हम रेप्लिकेट करके जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. एंड अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इन विवो से, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें वी हैव नंबर ऑफ genes, number of proteins, number of RNAs, and there is a very complex and organized structure जो कि हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एज अ ह्यूमन और एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम के थ्रू हमें मिलता है. तो उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें तो हमने कुछ सेल्स जो हैं वो आइसोलेट कर लिए हैं, और वो दे आर वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू द इन विवो टेस्टिंग. The researcher has to focus on the small number of the components. For example, अगर उस in vitro studies है for the aerosol, then only lung cells can be taken, and only the cell culture of the bronchiole will be taken. इस तरह उसमें simplicity होगी. Direct effects can be easily measured. By this method, we can identify the cells, we can identify the genes, and we can also identify several types of antigen antibodies and cell signaling pathways, and the immune system can easily be explored by this type of techniques.
Another advantage of in vitro studies is that basically this type of study can directly perform on the human cells without the use of any experimental animals cells. तो उसमें हमें extrapolation नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ह्यूमन सेल्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और वो किसी भी मेथड से आइसोलेट करके उनको प्राइमरी कल्चर से ग्रो करवा कर हम ह्यूमन सेल्स पे डायरेक्ट अपना इफेक्ट जो है वो मेजर कर सकती है. तो स्पीसीज स्पेसिफिसिटी है और हमें एक्स्ट्रापोलेशन फ्रॉम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल सेलुलर रेस्पॉन्स से हमें ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमन में वो रेस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेज. और इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एनिमल्स में रेस्पॉन्स आ रहे हैं लेकिन ह्यूमन में उस तरह के रेस्पॉन्सेज नहीं आ रहे. इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ वेरिएशंस हैं कि वो मैकेनिज़्म जो कि एनिमल के थ्रू में आ रहा है लेकिन वो ह्यूमन में नहीं आ रहा इन विवो स्टडीज़ में. तो फॉर इन विट्रो मेथड हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली ह्यूमन सेल्स यूज़ करें और ह्यूमन सेल्स को हम जब डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर ये स्पीशीज़ वेरिएशन जो है वो मिनिमाइज हो सकती हैं. Second, thirdly, these are convenient methods and they are automated methods. इसमें chances of error कम है और इसमें basically toxicology and pharmacology दोनों जो है वो interpretate किए जा सकते हैं. The disadvantage is that the major मसला ये है कि it is very challenging to extrapolate the results of in vitro back to the biology of the intact organism. यानी कि हम अगर ये देखें कि हमने आइसोलेटेड सेल्स पे काम किया, अब ये आइसोलेटेड सेल्स जब ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं तो दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन इन अ डिफरेंट वे. तो वो उनका जो फंक्शन है उसमें उनकी फिर ड्रग जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के पास से गुजरती है और फार्माकोडायनेमिक्स के पास से गुजरती है. उसके बाद वो सेवरल मेटाबॉलिक चेंजेस से होती भी फिर अपने जो है साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है. इन विट्रो में हमने ये किया कि हमने साइट ऑफ एक्शन जो है वो पहले से आइसोलेट कर लिया और सिर्फ साइट ऑफ एक्शन पे देख रहे हैं. वी डोंट नो अबाउट दी फार्माकोकाइनेटिक्स कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स यानी बॉडी ने उस ड्रग पे क्या चेंजेस किए है. तो उस सिनेरियो में अगर हम देखें तो फिर पूरे इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म में जो उसकी डायनेमिक्स चेंज हो रही है, काइनेटिक्स चेंज हो रही है, वो इंटरप्रिटेट करना, एक्सट्रापोलेट करना सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जो कि इन विट्रो स्टडीज़ में आता है. A problem, for example, due to current scenario, antiviral drug is under the clinical trial. हमें पता है कि कोविड के लिए एक ड्रग है जो कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो प्लानिंग में हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं and mainly they are producing in through the in vitro studies. In vitro studies के through by means of cell culture studies and by means of replication, viral replication methods, they are basically developing these type of vaccines and drugs. However, before the drug is used in the clinical practice, it must be go through a series of in vivo trials. In vivo trials में must उसको जाना पड़ेगा to determine its safety and efficacy in the intact organisms. अगेन उसको फिर स्मॉल एनिमल्स पे चेक करेंगे, फिर प्राइमेट्स पे चेक करेंगे, देन ह्यूमन सक्सेशन पे जो हमारे स्टेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के उसके थ्रू उसको पास होना पड़ेगा. बिकॉज जो उसकी टॉक्सिकोलॉजी है वो सिर्फ अभी हमें पेट्री डिश तक पता है, लेकिन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर या एनिमल के अंदर जाकर उसकी टॉक्सिकोलॉजी में और एफिकेसी में क्या ड्रास्टिक चेंज आता है वी डोंट नो. उसके लिए फिर इन विट्रो के साथ साथ हमें इन वीवो को ज्वाइन करना पड़ेगा और इन वीवो को भी फिर उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी. अनलेस अदरवाइज ये जो टेक्निक्स हैं ये अकेले आइसोलेटेड वे में नहीं हो सकती. सिर्फ अजम्पशन की बुनियाद पे और स्मॉल लेवल पे इन विट्रो टेस्टिंग पे हम कोई भी ड्रग जो है वो कमर्शलाइज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज पास थ्रू दी इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स. देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स जिसमें हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं. अमंग दैम वी हैव दी आइसोलेटेड टिश्यू टेक्निक्स, वी हैव दी प्राइमरी कल्चर टेक्निक्स इन विच वी आइसोलेट एंड ग्रो and identify different types of cells which are either derived from multicellular organisms like cells or tissue culture, or they may be the subcellular components like it may be the mitochondria, it may be the ribosomes, or it may be the subcellular extracts.
For example, it may be the extracts of the reticulocyte, extract of the blood cells, extracts containing the proteins, extract containing the